Hello everyone, this is the lecture number 2 of Fourier series. In this lecture, we will discuss some more examples and also know some more concepts of Fourier series. So let's get started. So this is the example number 6. Find the Fourier series expansion of the periodic function of period given 2 pi, and fx the function is given x square. X lies between minus pi to pi. Hence find the sum of the series, that is 1 by 1 square plus 1, here minus sign is there, minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square, and also here minus 1 by 4 square. Alternatively plus minus sign is there. So in the solution part, fx equals to x square and x lies between minus pi to plus pi. So as it is an even function, we know for even function bn equals to 0. So what is a naught? The formula of a naught, that is equal to 1 by L minus L to L fx dx, and here L is equal to how much? See, here L is equal to, that is b minus a, that is equal to 2L, and here upper limit is how much? Pi. Lower limit is how much? Minus pi. So it will be 2 pi is equal to 2L, and we know pi is equal to L in this case. Okay, so the value of L here is pi. Next, see, also we know for even case we can replace the integration minus L to plus L by 2 times of 0 to L. So here also we do the same thing. So see, a naught equals to 2 by pi, the value of L, 0 to pi. Instead of minus pi to pi, we are here using 2 times of 0 to pi, because the value of L equals to pi, fx dx. And here putting the value of fx, that is given already x square, and that is equal to 2 by pi integration of x square, that is x cube by 3. Okay, so putting upper limit pi, we get pi cube by 3. Okay, so it will be 2 pi square by 3. In the similar manner, let's find an. 2 by pi, here also we do the same thing, that is the limit is replaced by 2 times of 0 to pi fx, and for an we know cos nx, or the cos term is present here, cos nx dx. So the value of fx is equal to x square cos nx dx, and here we are using the by parts, integral by parts. So x square, as it is integration of cos nx sin nx by n. Next, derivative of x square, that is 2x. Next, integration of sin nx by n, that is equal to minus of cos nx by n square. Next, derivative of 2x, that is 2. Next, integration of minus cos nx by n square, that is minus sin nx by n cube. And also you know alternative minus plus sign will be there. Okay, next, see, after solving we get an equals to, so we know sin n pi equals to 0 here, so we are only considering the cos part. So 2 by pi, putting the upper limit in this expression, minus sign will be plus, this is 2 pi cos n pi by n square. So when I am putting the lower limit, x, as x is present, the whole term will be 0. So see, here
pi got cancelled. So 4 and the value of cos n pi equals to minus 1 to the power n by n square. So this is the value of a n and the value of a naught is 2 pi square by 3. So now what is the Fourier series expansion? The function is x square equals to a naught by 2. a naught equals to how much? कितना निकला था? 2 pi square by 3. So now it will be pi square by 3 because here we are using a naught by 2. Then sum of n is equal to 1 to infinity a n cos nx. So the value of a n, that is 4 into minus 1 to the power n by n square. Taking 4 outside, sum over n is equal to 1 to infinity minus 1 to the power n cos nx. So now putting the value of n one by one, we get, and here we are taking negative sign outside, so it will be cos x by 1 square minus cos x by cos 2x by 2 square plus cos 3x by 3 square. Okay, so see, when I am putting x equals to 0, the function will be 0 and equals to pi square by 3 minus 4 into cos 0 is equal to 1. Cos 2, here also it will be cos 0, here also it will be cos 0, so all the upper term will be 1. So it will be minus 4 into 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square and so on. Alternatively, plus minus sign will be there. And we have to put this expression. So see, this expression is 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square and so on, that is equal to pi square by 12. So this is the proof of this expression. Okay, in this way we have to prove it. So see, the graph will be like this. So in the interval, see, this is the graph of x square, right? Here function is given x square. We know the graph of x square, right? As it is an even function, the graph will be symmetrical about O, or that is 0, about 0. So, and the first limit, and the limit is minus pi by 2, पाई से लेकर पाई के बीच में, माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में, द फंक्शन लुक्स लाइक दिस. ओके, सो अबाउट ऑरिजिन, और यू कैन से अबाउट पॉइंट ओ और 0, द फंक्शन लुक्स लाइक सिमेट्रिक. Okay, this is a symmetric function. So even function is also known as symmetric function. So as it is an even function, so graph will be like this. Okay, next comes to example number 7. Find the Fourier series expansion of the function fx is given ax into cos x, that is lies between minus pi to pi. So since see, cos x is an even function but x is an odd function, so odd into even, the function whole will be an odd function. So as it is an odd function, both a naught and a n will be 0 here. So we are only considering the bn part, and also know in bn we can replace integration minus L to plus L by 2 times of 0 to L. So here also see, 2 pi is equal to 2L and L is equal to pi. So instead of L, we can put pi here. So 2 by pi is 0 to pi fx sin nx dx. आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि बी एन के साथ हमेशा साइन वाला पार्ट आता है एंड ए एन के साथ कॉस वाला पार्ट आता है ना. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज एक्स कॉस एक्स साइन एन एक्स डी एक्स.
सी, यहाँ पे हम साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो 1/2 इंटू एक्स एज इट इज़ कॉस एक्स इंटू साइन एन एक्स। तो यहाँ पे एक्स कॉस एक्स, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है, साइन एन एक्स एक्स का कोफिशिएंट कितना है n है, यानी कि हम क्या करेंगे साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और ये हो जाएगा साइन n माइनस 1 इंटू एक्स। समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। यहाँ पर साइन ए आपका क्या है साइन एन एक्स, इंस्टेड ऑफ ए द वैल्यू ऑफ द सिमिलरली कॉस बी के जगह पर यहाँ पे क्या है कॉस एक्स, सो द वैल्यू ऑफ बी इज़ 1। ओके, सो ए के जगह पर हमने यहाँ पे n यूज़ किया है, b के जगह पर हमने 1 यूज़ किया है, राइट। सो नाउ आप देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये होल फंक्शन x का है और यहाँ पे ऑलरेडी एक x प्रेजेंट है, राइट। तो हमने इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया है, 0 to पाई, ओके, क्योंकि यहाँ पे बीच में देखो प्लस साइन प्रेजेंट था। तो x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन आपको क्या देगा माइनस कॉस, राइट, और x का कंपोनेंट नीचे डिवाइड में आ जाएगा, फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और cos का हो जाएगा इंटीग्रेशन एंड इट विल बी गिव अस साइन n प्लस 1 बाई एक्स और x का कोफिशिएंट n प्लस 1 होगा और ये वाला पहले से था तो इट विल बी n प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली फॉर दिस केस ऑल्सो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे, x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देन x का डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, लाइक दिस। सो देखो साइन वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, साइन एन पाई हमें पता है 0 होता है, यहाँ पर भी साइन एन पाई आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो साइन वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। सो सिर्फ और सिर्फ कॉस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, है ना। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया कॉस वाले पार्ट को एक ब्रैकेट में रख दिया और यहाँ पे साइन वाले पार्ट को, देखो x और x इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो ये वाला पार्ट आ गया, फिर -1 दोनों में है, माइनस इट विल बी प्लस, यहाँ पर भी देखो माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो ये वाला साइन वाला पार्ट ब्रैकेट में आ गया। तो ये वाला पार्ट तो हमें नहीं चाहिए, साइन वाला पार्ट तो आपका 0 हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ कॉस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे अपर लिमिट पाई पुट करेंगे, उसके बाद लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। देखो 0 हम जब पुट करेंगे यहाँ पे x से तो वो तो होल टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ पाई पुट करना है ना। ओके, सो पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n प्लस 1 माइनस कॉस n माइनस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई n माइनस 1। सो नेक्स्ट देखो ये वाला पाई पाई कैंसिल हो गया आपका, ये वाला पार्ट क्या होगा -1 का पावर n प्लस 1, n के जगह पर n प्लस 1 है तो -1 का पावर भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और यहाँ पे भी वही होगा -1 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। बट आप इतना याद रखना कि n का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम n 1 पुट करेंगे तो समथिंग टू द पावर 0 इट विल बी 1, ओके, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, हियर n इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट देखो, सो टेकिंग -1 टू द पावर n प्लस 1 आउटसाइड, ओके, तो क्या हो जाएगा नीचे देखो ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा, हमने यहाँ पे माइनस साइन के साथ -1 टू द पावर n प्लस 1 भी आपका क्या हुआ कॉमन ले आए,
तो यहाँ पे आपका क्या बचा, +1 डिवाइडेड बाई n+1, और यहाँ पे भी देखो आप negative sign already taken outside, so it will be 1 by n-1, right? Okay. तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसको। हम क्या करेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग n इज ऑड, अगर हम n को ऑड लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे ऑड लेके देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा इफ वी आर टेकिंग 1, so it will be give us negative sign plus the and also the bracketed part, and after solving the bracketed part we get -2n by n square minus 1. This is a plus b into a minus b, a square minus b square, right? And here one thing you have to note, n not equals to 1. Okay, similarly when n is even, this sign will be positive here, right? Minus will be comes from this, and here one minus sign is already present, so it will be plus, and the bracketed part, so it will be 2n divided by n square minus 1, and here n is even. Okay, and c n square minus 1, so n not equals to 1 here. Okay, if we are putting n is equal to 1, so we know the value of bn, right? So now we are putting the value of n equals to 1, b1. So what will be b1? B1 is equal to c. So this is the bn, c. This is the expression of bn. So here instead of n, I am putting n equals to 1, and also here we are putting n is equal to 1. So see, this expression will be 2 by pi 0 to pi x cos x, and here sin nx will be there. So it will be sin x dx. So see, we know cos x into sin x, it will be sin 2x by 2, ये हो जाएगा. So 2 got cancel, we are left with 1 by pi. So x into sin 2x, we are using integral by parts. So x as it is, integration of sin 2x minus cos 2x by 2, then derivative of 1, then integration of minus cos 2x by 2, that is minus sin 2x by 2 square. So साइन वाला पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा. वी आर सिर्फ वी आर फोकसिंग ऑन कॉस पार्ट. So it will be x here, so putting the upper limit pi minus cos 2 pi by 2. If I am putting lower limit, the whole term will be 0. So pi got cancelled. The value of cos 2 pi, that is 1. Here negative sign is there, so minus 1 by 2. So the value of b1, this is the value of b1, that is minus 1 by 2. So see, x cos x, the function, that is equal to sum over n is equal to 1 to infinity bn sin nx. This is the Fourier series expansion. As we know, a naught and an will be 0 here, okay, as it is an odd function. So expand it. So b1 sin x plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x and so on. So here the value of b1 is equal to minus 1 by 2 sin x. Similarly, if we are calculating the value of b2, it will be 4 by 2 square minus 1, the value of b2, and sin 2x will be there. Similarly, the value of b3 will be minus 6 by 3 square minus 1, like this, and sin 3x and so on. So this is the Fourier series expansion of this function, that is x into cos x, right? Okay. So next comes to example number 8. To represent the following function by Fourier sine series. This is the, in this question itself it given कि Fourier sine series में express करो. इसका मतलब क्या हो गया कि here see ft
given t in the limit 0 to pi by 2 and pi by 2 in the limit pi by 2 to pi. तो इटसेल्फ फंक्शन में गिवन है कि फाइन फोरियर साइन सीरीज में बनाओ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इन द सोल्यूशन पार्ट, तो क्वेश्चन में साइन सीरीज बताया गया है, तो इसका मतलब ए नॉट and an both will be 0 here as it is a sine series. Okay, so now finding the value of bn, that is 2 by pi 0 to pi f of t. देखो यहाँ पे फंक्शन गिवन है f of t, so we are expressing the function f of t. यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin nt dt. How? Because here limit goes from 0 to pi. Okay, so as it is goes from 0 to pi, so see here 2 pi is equal to how much, sorry, b minus a is equal to 2l. So upper limit is pi, lower limit is 0, so pi is equal to 2l. So l is equal to your pi by 2, right? So see, instead of l, that is 1 by l, so if l is equal to pi by 2, then 1 by l is equal to 2 by pi. So यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 by pi limit goes from 0 to pi f of t sin nt dt. then 2 by pi जो गिवन लिमिट्स हैं उनको हम ब्रेक करके लिखेंगे, क्योंकि 0 से लेकर पाई बाई 2 के बीच में जो फंक्शन का वैल्यू है कितना है, t है। सिमिलरली पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में जो फंक्शन का वैल्यू है वो कितना है, पाई बाई 2 है। सो यहाँ पे देखो 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन का वैल्यू t साइन एन टी डी टी। सिमिलरली पाई बाई 2 से लेकर पाई के बीच में फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 साइन एन टी डी टी। तो यहाँ पे पाई बाई 2 इज़ अ कांस्टेंट, वी कैन टेक आउटसाइड इट इजीली। सो यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बाय पार्ट्स यूज़ करेंगे। टी एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन टी माइनस कॉस एन टी बाई एन, then derivative of t that is equal to 1, then integration of minus cos nt by n that is minus sin nt by n square 0 to pi by 2, and here only the integration of sin nt that is equal to minus of cos nt by n, limit goes from pi by 2 से pi. Okay, next सो यहाँ पे देखो पहले हम क्या पुट करेंगे, पाई बाई 2 कहाँ पे पुट करेंगे, टी के जगह पर। यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2। ओके, सिमिलरली इट विल बी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी पाई बाई 2 पुट करेंगे, साइन एन पाई बाई 2 हो जाएगा। सो लोअर लिमिट पुट करेंगे, टी के वजह से पूरा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। पहले हम पाई पुट करेंगे माइनस कॉस एन पाई बाई एन, देन पाई बाई 2 पुट करेंगे, इट विल बी कॉस एन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई एन। ऑलरेडी माइनस साइन इज देयर, सो ड्यू टू लोअर लिमिट वन एक्स्ट्रा माइनस साइन भी, सो इट विल बी पॉजिटिव। सो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो b1, सो नाउ वी आर फाइंडिंग दिस इज द वैल्यू ऑफ bn, सो 1 by 1 we are finding b1, then b2 and up to b3. Okay, so see, instead of n we are putting 1, so it will be 2 by pi minus pi by 2 pi cos pi by 2, then it will be sin pi by 2, here it will be minus cos pi, and this term will be cos pi by 2. Okay, so we know, see, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, cos pi minus pi, already minus sign is there, it will be plus, then cos pi by 2,
how much? 0. So the value of b1 is equal to 2 by pi plus 1. In similar manner, b2 will be minus 1 by 2. See, in the place of n, we have to 1 by 1 put n equals to 1. This is the value of b1. Similarly, put the value of n equals to 2. We get the value of b2. Similarly, when we are putting the value of n equals to 3, we are getting b3 equals to minus 2 by n pi plus 1 by 3. Okay. So the function f of t is equal to how much? This is the value of b1 sin t. उसके बाद आ जाएगा b2, बट हियर नेगेटिव साइन इज देयर, सो माइनस 1 बाई 2 साइन 2t. उसके बाद साइन 3t के साथ ये वाला कोफिशिएंट आएगा b3, दैट इज माइनस 2 बाई n पाई प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन. तो सी ऑड, इफ ऑड वैल्यूज ऑफ n होगा तो cos n पाई बाई 2 0 हो जाएगा, like cos 3 pi by 2, 5 pi by 2. Okay, if even values of n होगा like 2 pi, 4 pi by 2, so it will be plus 1 or minus 1, because वो क्या हो जाएगा, if I am taking n is equal to 4, cos 4 pi by 2, it will be cos 2 pi, and also we know cos n pi is equal to minus 1 to the power n, so minus 1 to the power 2, it will be positive 1, है ना. And see sin 3 pi by 2, so here we are considering the sine part, so sin 3 pi by 2 here minus 1. Okay, so this is the full explanation of example number 8. So now goes to example number 3. So देखो, in example number 9, a periodic function of period given 4 is defined as function is given mod x in the limit minus 2 to plus 2. Find its Fourier series expansion. Okay, so we know for mod x in the limit 0 to 2 in the positive part, so the function is plus x. We know the positive part, that is 0 to 2, the function will be x, and in the negative part minus 2 to 0, the function will be minus x when mod is there, right? So see here, minus 2 to plus 2, 2 is a constant, right? 2 is a constant here, so what is the value of a naught? So instead of L, we can put the constant value, so that is 1 by c minus c to c fx dx. So what is the value of c here? The value of c here is 2, so 1 by 2 minus 2 to 2 fx dx, and the value of fx will be in the limit 0 to 2 it is positive x, in the limit minus 2 to 0 it is negative of x. Okay, so see here, 1 by 2 minus 2 to 0, the function is minus x dx, plus 1 by 2 in the limit 0 to 2, the function here is plus x dx. So now integrate it. So integration of x, we know x square by 2, and just put the limits, we get 2. Okay, the value of a naught is 2 here. Similarly for a n, so a n equals to 1 by c. So अभी हमने बताया कि l के जगह पर c आ जाएगा, 1 by c माइनस सी टू सी एफ एक्स कॉस n पाई x by l था, l के जगह पर c आ जाएगा. So instead of l, here I am using c n pi x by l dx. तो यहाँ पे भी हम लिमिट को ब्रेक कर देंगे, माइनस 2 से 0 में माइनस एक्स, 0 से 2 में प्लस एक्स, एंड c के जगह पर 2 आ जाएगा, राइट. उसके बाद देखो, हम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाएंगे. ओके, सी माइनस एक्स, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n पाई x बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन n पाई x बाई 2, एंड डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x,
देन माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, देन इसका फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा। सिमिलरली ऑल्सो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगा, एक्स देन इंटीग्रेशन देन डेरिवेटिव ऑफ एक्स देन इंटीग्रेशन। सो नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी। पहले हम ज़ीरो पुट करेंगे, देखो x के जगह पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। फिर हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो इट विल बी कॉस जीरो, राइट। एंड कॉस जीरो आपको क्या देगा, 1 देगा। एंड इसमें से क्या हो जाएगा, 4/n² पाई स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला टर्म। सिमिलरली व्हेन आई एम पुटिंग -2, ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा। हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा था कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपको देगा 4/n² पाई स्क्वायर, उसके साथ कॉस ऑफ माइनस n पाई विल बी कॉस n पाई, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस n -1/n, ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, जब हम 2 पुट करेंगे, देखो 2 कैंसिल हो, 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस n पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली 0 पुट करेंगे तो x के वजह से वो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब हम 2 पुट करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस n पाई का वैल्यू -1/n, और इसके वजह से आएगा 4/n² पाई स्क्वायर। जब हम 0 पुट करेंगे कॉस 0 विल बी 1, और लोअर लिमिट के वजह से एक नेगेटिव साइन आएगा, 4/n² पाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा, सो हियर वी आर टेकिंग 1/2 एंड 4/n² पाई स्क्वायर एज कॉमन। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हमने क्या किया, ये वाला टर्म आपका कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे -1/n, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, -1, यहाँ पे भी -1/n, और यहाँ पे -1। सो नाउ इट विल बी, so 2 times of -1/n -2, so taking 2 outside, so ये वाला 2 से ये यहाँ से जो 2 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा। so 4/n² पाई स्क्वायर इंटू -1/n -1। so when we are putting the value of n is odd, that means putting n equals to 1, suppose it will be give us -1, and -1 it will be -2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड पुट करेंगे तो यहाँ से -2 आएगा, सो इट विल बी -8/n² पाई स्क्वायर। व्हेन n इज इवन इट विल बी 0, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 -1 0 हो जाएगा। देखो bn इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों, फंक्शन इज़ एन इवन फंक्शन। हमने पहले से ही आपको बता दिया कि जो आपका फंक्शन है ना, देखो ये वाला जो आपका mod x, आपको पता होगा mod x इज़ एन इवन फंक्शन, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट 0, राइट। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, ओके। तो एज इट इज़ एन इवन फंक्शन, सो bn का वैल्यू ही 0 हो गया। सो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन fx इज इक्वल टू a0/2, हमने यहाँ पे an cos nx वाला पार्ट को एक्सपैंड कर दिया है। तो a1 यहाँ पे क्या था, an cos n पाई x/c था, तो क्या हो जाएगा, a1 cos पाई x/2 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ c, a2 cos 2 पाई x/2 हो जाएगा। 2 इज़ द वैल्यू ऑफ n, नीचे वाला पार्ट आपका c का वैल्यू है, इसको याद रखना, ओके ओके। So now the value of C, n is equal to how much, n is equal to -8/n² पाई स्क्वायर, right। तो if I am putting n is equal to 1, -8/pi square, we only take the odd values of n,
So minus 8 by 3 square pi square, minus 8 by 5 square pi square, like this. So we are taking minus 8 by pi square outside. It will be cos pi x by 2 1 square, then cos 3 pi x by 2 3 square, then cos 5 pi x by 2 5 square. Only we are considering the odd values, क्योंकि only odd values के लिए ही an का वैल्यू है, क्योंकि इवन के लिए तो ज़ीरो है. सो ऑड वैल्यूज ही लेना है हमको. तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. ओके. So now comes to the example number 10, that is asked in T4 2010. Okay. See, a function fx is defined in the range -1 to +1. When x is greater or equal to 0, the value is 1 minus x. x less than 0 के लिए fx का वैल्यू कितना है? 1 plus x. So the first few terms in the Fourier series approximating this function. So these are the options given. Okay, so see, this is the given question. So we know Fourier series equals to a naught by 2, sum of n is equal to 1 to infinity a n cos n pi x बाई एल होता है. यहाँ पे एल का वैल्यू कितना है? देखो, बी माइनस ए इज इक्वल टू 2l, अपर लिमिट +1, लोअर लिमिट -1, सो एल इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जो एन पाई एक्स बाई एल था, एल की जगह पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना. सो ए एन कॉस एन पाई एक्स प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स. तो ए नॉट हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था? 1/l माइनस एल टू एल एफ एक्स डी एक्स. इंस्टेड ऑफ एल पुटिंग एल इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस 1 to 1 एफ एक्स डी एक्स. So in the limit -1 to 0, the function is 1 plus x. In the limit 0 to 1, function is 1 minus x. Just integrate it. We get what? See, we can do also. See here. So after solving the integral, we get the value of a naught is 1. Okay. So this is the simple integration. Just integrate x. Integration of dx, we get x. Integration of x dx, x square by 2. After putting the limits, we get simply 1 here. Right. Now comes to an. So an is equal to -1 to n if 1 to 1 fx cos n pi x dx. So क्या हो जाएगा? See, as it is an even function, okay, as it is an even function, we can simply change the limit 2 times 0 to the upper limit, that is 2 times of 0 to 1. Here also we do the same thing. तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे. 2 times of 0 to 1 एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई डी एन पाई एक्स डी एक्स. सो 0 to 1 में क्या था फंक्शन? 1 माइनस एक्स. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे. 1 माइनस एक्स कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एन पाई. फिर यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा -1, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा. लिमिट्स पुट कर देंगे. देखो, साइन वाला पार्ट वैसे ही 0 हो गया. सिर्फ कॉस वाला पार्ट देखो क्या होगा. यहाँ पे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है. यहाँ पे n स्क्वायर पाई स्क्वायर. व्हेन वी आर पुटिंग 1, सी 3 नेगेटिव साइंस आर देयर. So minus cos n pi, that is minus cos n pi. When I am putting 0, due to lower limit 1 extra negative sign आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस आएगा तो it will be positive, तो +1 हो जाएगा. So 2/n square pi square taking common 1 minus cos n pi. हला. So cos n pi, that is equal to -1 to the power n. So when n is odd, that is -1 to the power suppose 1. So it will be 2. So 4/n square pi square
for odd n. Okay, so as it is an even function, bn is equal to 0. सो बी एन अगर ज़ीरो हो जाएगा तो सिर्फ हमारे पास ए नॉट का वैल्यू रहेगा ए नॉट बाई टू, बिकॉज ए नॉट आपका 1 आया था, ए नॉट बाई टू हो जाएगा 1/2. देन दिस इज 4/π². सिर्फ वी आर कंसिडरिंग द ऑड वाला पार्ट. ओके, sum of n is equal to 1, 2, 1, 3, 5 and so on. 1/n² cos n pi x. तो क्या हो जाएगा 4/π² cos pi x. देन 4/3 का स्क्वायर 9, फिर π² cos 3π x. तो ऐसे ही सिर्फ ऑड वैल्यूज़ हम लेंगे किस में, एन के साथ, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑड ही आया है. ऑड एन के लिए वैल्यू है कितना 4/n² π². सो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है ना. ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे वन मोर कंसेप्ट ऑफ फोरियर सीरीज, दैट इज हाफ रेंज सीरीज. हाफ रेंज मतलब जो पहले से जो लिमिट था -l to l, दैट इज द फुल रेंज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to l, इंटरवल आपका क्या हो जाएगा 0 से लेकर l हो जाएगा. सो लेट द फंक्शन is defined in the interval 0 to l and it is insignificant whatever with the form of the function outside 0 to l. तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है 0 to l के बाहर, उस इंटरवल के बाहर फंक्शन का नेचर क्या है, वो किस तरह से है, राइट. सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द इंटरवल 0 to l. देखो कैसे. To get the cosine half range cosine series, we take fx is an even function. First of all, कोसाइन सीरीज़ के लिए कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़, आप इसको देखो कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़, इसके लिए फंक्शन शुड बी इवन फंक्शन एंड इन द इंटरवल -l to l. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहले से ए नॉट कैसे हम निकालते थे 1/l -l to l fx dx. लेकिन कोसाइन हाफ रेंज कोसाइन सीरीज़ के लिए इट विल बी 2 times of 0 to l fx dx एंड यहाँ पे l डिवाइड में आएगा. ठीक है ना. तो वही जैसे हम इवन फंक्शन के केस में करते थे सेम यहाँ पे सिमिलरली एन क्या हो जाएगा 1/l, पहले क्या था -l to l fx cos n/x/l dx, तो ये हो जाएगा 2 times 0 to l. लेकिन बी एन का वैल्यू जैसे पहले से ही इवन फंक्शन में बी एन का वैल्यू 0 हो जा रहा था, यहाँ पे भी वही होगा बी एन इज इक्वल टू 0. सिमिलरली देखो टू गेट कोसाइन हाफ रेंज साइन सीरीज, कोसाइन हाफ रेंज साइन सीरीज we take function is an odd function in the interval -l to l. तो सेम वही चीज़ होगा जैसे ऑड फंक्शन में क्या होता है ए नॉट का वैल्यू भी 0 होता है, ए एन का वैल्यू भी 0 होता है, बी एन यहाँ पे ऑड फंक्शन फंक्शन विल बी इवन, तो लिमिट जो चेंज हो जाता है 2 times of 0 to l हो जाता है, वही सेम चीज़ होगा यहाँ पे भी. ओके, नाउ कम्स टू पार्सेवल्स आइडेंटिटी और पार्सेवल्स फॉर्मूला. सो फॉर फुल रेंज फोरियर सीरीज क्या हो जाएगा -l to l फंक्शन का स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू l इंटू ए नॉट स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर हो जाएगा ए नॉट बाई 2 था वो क्या हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity a n स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर. ओके, कॉस साइन वाला टर्म नहीं आएगा, सिर्फ स्क्वायर होगा. सिमिलरली हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए क्या होगा ओनली ए नॉट ए एन प्रेजेंट होंगे. सिमिलरली हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए क्या होगा, और लिमिट देखो 0 से l, यहाँ पे भी 0 से l, हाफ रेंज मतलब 0 से l. ओके, सिमिलरली साइन सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बी एन वाला पार्ट आएगा. ठीक, तो देखो फिर से हाफ रेंज कोसाइन सीरीज. सो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज के लिए लिमिट गोज फ्रॉम 0 to l fx स्क्वायर dx दैट इज़ l/2, यहाँ पे l था हाफ के लिए l/2 हो जाएगा. ए नॉट स्क्वायर बाई 2
प्लस सम ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to infinity ए एन स्क्वायर। हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए क्या होगा, 0 से एल एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स दैट इज L/2, यहाँ पे L/2 सम ओवर एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन का स्क्वायर। ओके, नाउ कम्स टू एग्जाम्पल नंबर 11। बाय यूजिंग द हाफ रेंज साइन सीरीज, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है साइन सीरीज। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इन द इंटरवल 0 to पाई सो दैट दिस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन को हमें प्रूव करना है। क्या होगा, साइन सीरीज मतलब यहाँ पे बोथ ए नॉट ए एन इक्वल्स टू 0, तो बी एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। बिकॉज यहाँ पे एल का वैल्यू आपका क्या हो गया, यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है, देखो 0 से लेके पाए है ना, 0 से लेके पाए, तो यहाँ पे आपका देखो जो एक्सप्रेशन था एन पाई एक्स बाई एल था बी एन में, तो एल का वैल्यू आपका क्या हो गया, पाई हो गया, 0 से लेके पाए, एल इज इक्वल टू पाई हियर, राइट, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हाफ लिमिट है, सॉरी हाफ रेंज है, तो हाफ रेंज में आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू एल, b माइनस ए इज इक्वल टू एल है, पाई माइनस 0 इज इक्वल टू एल, तो पाई इज इक्वल टू एल। ओके ओके, so b minus a is equal to l, that means upper limit is the pi minus 0 is equal to l, so pi is equal to l। तो इंस्टेड ऑफ l हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, तो साइन एन पाई एक्स बाई एल, तो पाई एल की जगह पर पुट आएगा, सो पाई कैंसिल। सो एफ एक्स का वैल्यू इन दिस लिमिट कितना है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन में गिवन है 0 से पाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स बाई एन, 0 से पाई। सो पुटिंग अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे कॉस एन पाई, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 दैट इज 1। ओके, सो ऑलरेडी माइनस साइन टेकिंग आउटसाइड, सो कॉस एन पाई माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1। सो वेन एन ऑड जब लेंगे, तो एन ऑड लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, -2, यहाँ पे -2 है, 4/n पाई। जब एन इवन होगा तो यहाँ पे +1 -1 ओके पूरा 0 हो जाएगा। सो देन द साइन सीरीज, हम क्या लिखेंगे, साइन सीरीज फंक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या आएगा, सिर्फ b वाला पार्ट, यानी कि b1 साइन एन एक्स प्लस b2 साइन 1, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ऑड वैल्यूज इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो b1 साइन एक्स, b3 साइन 3x, b5 साइन 5x, b7 साइन 7x, तो यहाँ पे देखो b1 जब हम 4/n पाए इन पुट करेंगे तो 4/पाई, 2 पुट करेंगे तो 2 नहीं 3 पुट करेंगे तो 4/3 पाई, 5 पुट करेंगे तो 4/5 पाई, 7 पुट करेंगे तो 4/7 पाई। ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट हाफ रेंज बताया गया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग पार्सेवल्स फॉर्मूला, पार्सेवल्स फार्मूला यूज़ करके हमको वो वाला आइडेंटिटी जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको भी प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो 0 to L एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फॉर्मूला आपका क्या था, ऑड वाले साइन सीरीज़ में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सम ओवर इन 1 to infinity बी एन स्क्वायर होगा, तो L/2, L आपका क्या है, पाई/2, फंक्शन क्या है 1 का स्क्वायर, लिमिट गोज़ फ्रॉम 0 to पाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, तो ये वाला आपका b1 स्क्वायर, फिर आएगा b3 स्क्वायर, देन b5 स्क्वायर, b7 स्क्वायर, लाइक दिस। सो अब हम क्या करेंगे, देखो 4 स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर यानी कि 16/पाई स्क्वायर सब में है,
तो हमने क्या किया 16/π² आउटसाइड ले आए, तो क्या बचा 1 + 1 बाई यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1/7 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी आर गेटिंग π²/8। π²/8 इज इक्वल टू 1/1 + 3 का स्क्वायर + 1/5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सो दिस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन हमें क्वेश्चन में गिवन था प्रूफ करने के लिए। देखो हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 12, इफ f(x) इज इक्वल टू πx इन द इंटरवल 0 to 1, π into 2 minus x in the interval 1 to 2. So using half range cosine series, here cosine series is mentioned so that this expression, so cosine series मतलब कि आपका bn तो 0 हो गया, तो सिर्फ a0 क्या हो जाएगा 2/l 0 to l f(x) dx। तो यहाँ पे l कितना है 0 to 2, so l is equal to 2 here, so 2/2 0 to 2 f(x) dx। तो 0 से 1 के बीच में πx है, तो फंक्शन πx हो गया। 1 से 2 के बीच में π into 2 minus x, तो इसको जस्ट हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड लिमिट्स पुट कर देंगे। सो वी आर गेटिंग पाई द वैल्यू ऑफ a0। सिमिलरली an फॉर्मूला क्या होता है 2/l 0 से l f(x) cos n πx/l dx। l के जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2 पुट कर देंगे। सो 2/2 0 से 1 के बीच में फंक्शन आपका πx है, यहाँ पे भी l के जगह पर 2 आ जाएगा। 1 के 2 के बीच 1 से लेकर 2 के बीच में फंक्शन π into 2 minus x, और यहाँ पे आपका cos n πx/2। तो यहाँ पे सिंपली हम बाय पार्ट्स लगाएंगे। x पाई तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लिए, x इंटीग्रेशन ऑफ cos आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन, लिमिट्स, प्लस यहाँ पे भी इस वाले पार्ट में भी वही होगा, पाई हमने बाहर ले लिया 2 minus x इंटीग्रेशन ऑफ cos, देन इसका डेरिवेटिव, देन इसका इंटीग्रेशन, जैसे हमने बहुत एग्जाम्पल्स किए हैं, आपको प्रैक्टिस भी हो गया होगा, है ना। सो लिमिट्स पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो पहले हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, 0 वाला पुट करेंगे तो x के वजह से तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला पहले यहाँ पे देखो n π/2 है, ओके जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे n π/2 क्या हो गया 2/n π, 1 पुट करेंगे साइन n π/2 प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये आपका क्या होगा 4/n² π²। देन हम क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे cos n π/2। सिमिलरली लोअर लिमिट यहाँ इसमें पुट करेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा लोअर लिमिट के वजह से नेगेटिव साइन और एक आएगा, और ये वाला 4/n² π², क्योंकि cos 0 विल बी 1। इन सिमिलर मैनर यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे। देखो 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 0, होल टर्म विल बी 0, ओके। एंड 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 2 - 1 1, और यहाँ पे क्या आएगा साइन n π/2, और यहाँ पे 2/n π। और सिमिलरली 2 पुट करेंगे इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस साइन विल बी देयर, यहाँ पे इसके वजह से आएगा 4/n² π², देन cos n π, क्योंकि हमने 2 पुट किया तो 2 कैंसिल हो गया। सिमिलरली हम 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4/n² π²। यहाँ पे 3 नेगेटिव साइन है, और लोअर लिमिट के वजह से और एक नेगेटिव साइन आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा cos n π/2, ओके। तो यहाँ पे देखो पाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो ये वाला 4/n² π² cos n π/2, और यहाँ पे देखो ये वाला ये हो गया ना 8, उसके बाद ये वाला -4/n² π² यहाँ पे आ गया, और ये देखो ये वाला तो आपका कैंसिल हो गया प्लस माइनस, और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे
सब में से 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर है ना, सब में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 cos n पाई बाई 2, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे cos n पाई बचेगा। ठीक, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अगर हम ऑड्स पुट करते हैं लाइक 1 n इज इक्वल टू, जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आपका a n का वैल्यू है ना, तो a1 आपका 0 हो जाएगा। आप पुट करके देखो cos n पाई, देखो cos n पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 तो वैसे ही 0 हो गया, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे cos n पाई, सो cos पाई का वैल्यू -1, ऑलरेडी माइनस साइन है तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, 0 हो गया। वैसे ही आप 3 पुट करो, 5 पुट करो तो वो क्या होगा, a1 a3 a5 इससे 0 होगा। लेकिन a2 जब हम 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू होगा -4/पाई। a4 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। a6 पुट करेंगे -4/n पाई, ऐसे आप निकाल सकते हो पुट करके। ओके, सो यहाँ पे भी वही उस वाले रिलेशन को, एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए हाफ रेंज में हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, इसको याद रखना, पार्सेवल्स आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। सो 0 से l f(x) स्क्वायर dx इक्वल टू l/2 a0 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे सिर्फ an वाला पार्ट आएगा an स्क्वायर, दैट इज a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a4 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे a1 a3 a5 a4 ये तो सब टर्म 0 है, तो a2 स्क्वायर होगा, a6 स्क्वायर होगा, ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन की जगह पर हम 0 से 1 के बीच में पाई x का स्क्वायर करेंगे, 1 से 2 के बीच में पाई इंटू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे l इज इक्वल टू 2 हमने ऑलरेडी बताया था, और a0 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे आपका ये a2 और ये a6 का वैल्यू। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो जस्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन को, यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। ओके, यहाँ पे तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये इन दोनों में से हम 16/पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1/81 एंड सो ऑन। तो इसको जस्ट हम ये वाला पाई वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, पाई टू द पावर 4/96 एंड दैट इज इक्वल टू 1 देखो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4। तो इसका आगे भी जब आप सॉल्व करोगे वो क्या आएगा, 1/5 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। तो यही वाला हमको प्रूफ करना था, है ना। तो दिस एक्सप्रेशन देखो, ये वाला एक्सप्रेशन ही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही एक्सप्रेशन देखो आपको गिवन था। तो ये वाला एक्सप्रेशन आप कैसे प्रूफ कर पाए, बाय यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी। ओके फाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे फोरियर सीरीज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा, तो सपोज अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 से लेके 2l, ये आपका इंटरवल है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे इन द रियल स्पेस, हम क्या यूज़ कर रहे थे, a0 an bn लाइक दिस। तो यहाँ पे हम c0 यूज़ करेंगे, cn यूज़ करेंगे, c-n यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू c0 प्लस सम ऑफ n इज इक्वल टू 1 to infinity cn के साथ क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट, एक्सपोनेंशियल टू द पावर आयोटा n पाई x बाई एल प्लस n इक्वल्स टू 1 to infinity c माइनस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x बाई एल। ओके, तो c0 हम कैसे निकालेंगे, इसको याद रखो, 1/2l होगा इस केस में, 0 से लेके 2l एफ एक्स डी एक्स। cn कैसे होगा, 1/2l 0 से लेके 2l एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल के साथ नेगेटिव साइन आएगा। जब आप cn निकालोगे तो cn के साथ नेगेटिव साइन लोगे, है ना। cn इज इक्वल टू 1/2l 0 से 2l एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा n पाई x बाई एल डी एक्स।
सिमिलरली सी माइनस एन जब निकालोगे 1/2l 0 से 2l एफ एक्स के साथ ये वाला आपका प्लस रहेगा e⁻i n pi x by l dx। बस आपको ये वाला चीज़ याद रखना है। ओके, सो नाउ इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि आपको कॉम्प्लेक्स में करना है कि नहीं। ओके, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द इंटरवल -π to 0 एंड 1 इन द इंटरवल 0 to π। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल क्या है, एल आपका कितना है, सो फॉर्मूला आपका क्या था 1/2l। तो यहाँ पे आपका एल कितना होगा, पाई होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे एल इज इक्वल टू पाई होगा। कैसे होगा ना, सी बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आप बी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू आप यहाँ पे एल लोगे, ठीक। सो बी आपका क्या हो गया, पाई हो गया। लोअर लिमिट -π तो +π माइनस पाई, आपका क्या हो गया, एल हो गया। अच्छा, b माइनस ए इज इक्वल टू 2l। सो 2π इज इक्वल टू 2l होगा, तो l आपका क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सेम वही फॉर्मूला जो हम लगाते थे ना, b माइनस ए इज इक्वल टू 2l वाला फार्मूला, वही फार्मूला हम लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इस वाले लिमिट में तो इंटरवल में तो फंक्शन 0 है, तो ये हमें नहीं चाहिए। सिर्फ 0 से पाई के बीच में एफ एक्स डी एक्स 1/2π। यहाँ पे एल के जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पाई। ओके, सो फंक्शन यहाँ पे कितना है, 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, सी नॉट का वैल्यू 1/2। सिमिलरली सी एन का वैल्यू क्या होगा, 1/2π माइनस पाई टू पाई एफ एक्स ई टू द पावर माइनस आयोटा आई एन एक्स माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। सी एन के साथ नेगेटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे एल के जगह पर पाई है, तो जो फॉर्मूला था आपका क्या था, e⁻ माइनस आयोटा n पाई एक्स बाई एल। तो एल के जगह पर हम पाई पुट करेंगे तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या रहेगा, e⁻ माइनस आयोटा एन एक्स, ठीक। तो यहाँ पे देखो, माइनस पाई से लेके 0 के बीच में फंक्शन 0 है, ये टोटल इंटीग्रल 0 हो गया। और यहाँ पे फंक्शन के जगह पर 1 लगाएंगे तो 0 to पाई e⁻ माइनस आयोटा एन एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, e⁻ माइनस आयोटा एन एक्स और x का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा माइनस आयोटा एन। लिमिट्स पुट कर देंगे x के जगह पर, e⁻0 आपका 1 होता है, e⁻ आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। e⁻ माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पे वही होगा, कॉस एन पाई माइनस आयोटा साइन एन पाई। ओके, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 2 आयोटा को हम इसके नीचे ले आएंगे। ओह सॉरी, वेट। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस एन पाई आपका -1 टू द पावर n, साइन एन पाई तो 0 होता है और ये 1। तो आपका क्या ये वाला हो गया, ये वाला आपका -1 टू द पावर n, यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाई 2π आयोटा n। जब हम n को ऑड पुट करेंगे, सपोज हमने n को 1 पुट किया, तो ये वाला आपको क्या देगा, -2, और यहाँ पे माइनस प्रेजेंट है, +2, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आयोटा एन पाई देगा। अगर इवन होगा तो +1 -1 यहाँ से ही कैंसिल होके 0 दे देगा। सिमिलरली देखो, सिर्फ एन को हमें किससे रिप्लेस करना है, -n से। सी ऑफ -n आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 आयोटा एन पाई व्हेन n इज ऑड एंड 0 व्हेन n इज इवन। ओके,
तो नेक्स्ट देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एक्स, यहाँ पे सी नॉट का वैल्यू आ गया और यहाँ पे आपका सी एन का वैल्यू और यहाँ पे सी माइनस एन का वैल्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट आपका सी एन का वैल्यू है, तो 1 पुट करेंगे तो 1 आयोटा पाए, सिर्फ ऑड लेना है। 3 पुट करेंगे तो 1/3 आयोटा पाए। 5 पुट करेंगे तो 1/3 आयोटा पाए। उसके साथ एक्सपोनेंशियल में पॉजिटिव पावर आएगा e टू द पावर आयोटा x, आयोटा 3x, आयोटा 5x और यहाँ पे सब नेगेटिव आएगा। लाइक यहाँ पे माइनस एन है ना, एन रिप्लेस हो जाएगा माइनस एन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाले में सब प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा x/-1। ओके, तो जो यहाँ पे होगा e टू द पावर, यहाँ पे क्या है आयोटा x/1, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा x/-1, यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस आयोटा 3x/-3, यहाँ पे भी वही होगा। तो देखो इन दोनों में से हम इन टोटल हम क्या ले लिए कॉमन, -1/आयोटा पाए, तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा x और माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x। सिमिलरली इन दोनों को हम लिख सकते हैं 1/3 कॉमन हो गया, तो e टू द पावर 3 आयोटा x माइनस e टू द पावर -3 आयोटा x एंड सो ऑन। तो ये वाला पार्ट आपको पता है क्या होता है, 2 हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाला आयोटा को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये वाला पार्ट आपका साइन का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला। क्योंकि देखो e टू द पावर आयोटा x माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा x डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आपका क्या होगा, साइन x। सिमिलरली ये वाला पार्ट साइन 3x होगा, ये भी साइन 5x होगा एंड लाइक दिस। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन। ओके फाइन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ PYQs डिस्कस करेंगे जो गेट से रिलेटेड है, CSIR से रिलेटेड है और आपका IIT JAM से रिलेटेड है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।